محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ کامن ویلتھ گیم 2022 میں داخلوں کا آغاز، فخر نظام آباد عالمی شہرت یافتہ گولڈن گن باکسر نکھت زرین کی ہندوستان کی جانب سے نمائندگی کا امکان۔ نندی پیٹ منڈل CH کنڈور دیہات میں گزشتہ 6 دنوں سے جاری لکشمی نرسمہا سوامی مندر کی تقاریب کے اختتامی پروگرام میں مشہور معروف شخصیات کے علاوہ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، CM KCR کی شریک حیات MLA جیون ریڈی، اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا و دیگر نے کی شرکت۔ پٹنہ پرگتی پروگرام کا اہم ترین مقصد دیہی و شہری علاقوں کو ترقی کی جانب گامزن کرنا، ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے کیا اظہار۔ نوی پیٹ کندا کرتی چوراستہ کراسنگ کے پاس لوری کی کار سے ٹکر، کار میں موجود سیلف بیلون اوپن ہونے کے باعث مسافرین کو معمولی چوٹیں آئی۔ اسلامک سمر کیمپ گوتم نگر کا ہوا اختتام، طلباء کے بہترین مظاہرے پر ذمہ داران کی جانب سے انعامات کی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسلامک سمر کیمپ گوتم نگر کا ہوا اختتام، طلباء کے بہترین مظاہرے پر ذمہ داران کی جانب سے انعامات کی تقسیم۔ گرمائی تعطیلات میں بچوں کو دینی تعلیم و دین کی معلومات فراہم کرنے کی غرض سے علماء اہل سنت حافظ محمد بشیر الدین صاحب خطیب و امام مسجد عمر فاروق کی جانب سے شہر کے علاقے گوتم نگر گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول میں گزشتہ 1 ماہ سے اسلامک سمر کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس کا آج اختتام عمل میں آیا، جس میں طلباء کو 1 ماہ کے درمیان دی گئی تعلیمات کے متعلق امتحان منعقد کیا گیا، جس میں بہتر مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا اظہار اشرف صاحب امام و خطیب مسجد درگاہ کنٹیشور نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اس سمر کیمپ کا مقصد طلباء میں دین و احادیث کی تعلیم فراہم کرنا ہے، اور تمام طلباء جنہوں نے اس اسلامک کیمپ میں حصہ لیا ان تمام کو مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ دین کی تعلیم کو اسی طرح حاصل کرتے رہنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ لڑکوں میں انعام اول سید ریحان و انعام دوم محمد ریحان نے حاصل کیا، اور لڑکیوں میں انعام اول محمدی اعظمی اور انعام دوم فاریہ فاطمہ نے حاصل کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے مرزا ظفر صاحب، شیخ عباس صاحب، محمد زبی صاحب، سید مجیب صاحب نے شرکت کی۔ اتنے کامیاب ہوئی تو با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، لہذا اخلاق جو آپ کو سکھایا گیا اس کو پوری طریقے سے آپ فالو کریے، با ادب بن کے رہیے۔ دوسری بات، جتنی تعلیمات آپ کو دی گئی اس پہ آپ عمل کریے، جیسے نمازوں کی پابندی ہے اور بھی جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئی ساری چیزوں پہ عمل کریے۔ اب 2 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد آپ کو دین نہیں چھوڑنا ہے، یہ جو اسکول کی تعلیم آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی دنیا بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دین تو ہر معاملے میں ضروری ہے۔
तो स्कूल का वर्क करना था, वो करना था, ये कर रहे वो कर रहे, फिर नमाजों की पाबंदी में हो रही, यहाँ जा रहे वहां जा रहे, ये सारी चीजें नहीं। आपको सारी चीजें यहाँ इसलिए बताई है कि नमाज का मामला इम्पोर्टेंट है। आप ट्यूशन जाओ, आपको जरूर जाना है, आप वर्क करना है बराबर करिए, लेकिन नमाजों की पाबंदी है, दीन की तालीम है। यहाँ जितना सीखे, आपको मैं एक लिस्ट बना के आप बनाए कि कितना यहाँ आप सीखे, कितनी चीजें आप सीखे, आपको रखिए। नेक्स्ट टाइम आप इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, आप 20, 25, 40 चीजें आप वो दीनी तालीम के लिए रही कि बच्चे कुछ इस गर्मी के छुट्टी के मौके पर थोड़ा बहुत सीख लें, और माशाल्लाह हमने देखा बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखें और नमाज के तमाम फायदे, नमाज के तमाम रुकनों को बेहतर तरीके से समझते हैं। कलाम मजीद की तिलावत का तरीका इनको मालूम हो चुका है, और इंशाअल्लाह वजल हम यही उम्मीद करते हैं अपने इन असातिज़ा से, जिन जिन हजरात ने यहाँ पढ़ाने में हिस्सा लिया, कि हमेशा यही कोशिश में लगे रहे कि बच्चों के दिलों में दीनी तालीम को और ज्यादा उजाले फैलाए। तो अब ये देखिए कि ये इस महीने में जिन जिन बच्चों ने तालीम हासिल की, हम तो ये नहीं कहते कि ये फर्स्ट या सेकंड, नहीं, हमें उससे कोई लेना नहीं। हमारी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दाखिलों का आगाज। फख्र निजामाबाद आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर गोल्डन गर्ल निखत जरीन की हिंदुस्तान की जानिब से नुमाइंदगी का इम्कान। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए दाखिले मुकाबलों में फख्र निजामाबाद वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने शानदार 5-0 से कामयाबी हासिल की। ये दाखिले मुकाबले 9 जून से 11 जून तक जारी रहेंगे। इसमें पूरे इम्कानात है कि इस बार कॉमनवेल्थ मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी निखत जरीन करेंगी। इसके लिए इनके तमाम चाहने वालों में दुआओं का सिलसिला जारी है। बोधन में हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाक़ी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का शाहरोज़ा उर्स शरीफ का इख्तिताम। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल निज़ामाबाद के अरकान की शिरकत। सूफ़ी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी जामा सलासिल निज़ामाबाद मोतमिद नशर व शात आस्ताना हज़रत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद वो इंचार्ज ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि बोधन में हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाक़ी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह शफीक़ चमन का आज शाहरोज़ा उर्स शरीफ का इख्तिताम अमल में आया। बरोज़ पीर को बाद नमाज असर संदल माली का जुलूस हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी क़ादरी सानी व निज़ाम क़िबला सज्जदा नशीन और इनके फ़र्जंदान हाफिज़ सैयद हसीब क़ादरी और सैयद मालिक क़ादरी व मोहम्मद साबिर क़ादरी क़िबला के हमरा निकाला गया। मौलाना बाक़ी साहब इस जुलूस की निगरानी किए। इस जुलूस संदल में कई हजरात ने शिरकत की है। बाद नमाज मगरिब संदल माली के मरासिम सज्जदा साहब ने अदा की है। इस संदल माली में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र हजरात में हज़रत सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा क़ादरी अल चिश्ती बियाबानी क़िबला सज्जदा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निज़ामाबाद व इंचार्ज कौंसिल हज़रत सैयद शाह मज़र आलम हुसैनी क़ादरी अल चिश्ती क़िबला सज्जदा नशीन व मुतवली आस्ताना हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी अल चिश्ती बाबन साहब पहाड़ी निज़ामाबाद व रुकन कौंसिल जनाब इब्राहिम क़ादरी साहब, जनाब हाफिज खदीर निज़ामी साहब, जनाब अब्दुल्ला कुरैशी क़ादरी साहब निज़ामाबाद के अलावा हज़रत सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन क़िबला अलमारुफ सुल्तान क़ादरी साहब, सदर उलमाए अहले सुन्नत बोधन हाफिज अतीक निज़ामी साहब, जनाब सैयद बशीरुद्दीन क़ादरी साहब सज्जदा नशीन बोधन, जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब क़ादरी साहब सज्जदा नशीन बोधन, जनाब मोहम्मद अब्दुल समी साहब मोतमिद मजलिस निज़ामाबाद, हाफिज ज़ीशान रज़ा साहब, मोहम्मद साबिर क़ादरी, मोहम्मद अलीम रज़ा साहब नुमाइंदा कौंसलर, अहमद नुमाइंदा कौंसलर, हबीब अहमद खान खदीर कौंसलर, मोहम्मद जमील अहमद, गुलाम मुजीब साहब बोधन के अलावा कई सियासी समाजी व मजहबी अराकीन ने शिरकत की है। बाद इशा ताम का नज़्म रखा गया। रात 10:30 बजे जलसा अज़मत औलिया व इस्लाह मुआशरा मुनक़िद था। इस जलसे से खतीब शान दक्कन शुरा बयां मुक़र्रर हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी व जुनैदी क़िबला बानी तहरीक सदाए इस्लाम हैदराबाद ने अपने बसीरत अफरोज़ ख़िताब में नौजवानों से मुखातिब होकर कहा, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत पाबंदी रोज़ाना करे, मोबाइल
ہر وقت دینے کے بجائے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ بروز منگل بعد نماز عشاء احاطہ درگاہ شریف میں محفل سماع منعقد تھا، جس میں جناب رفیق دلدار وہ ہم نوا حیدرآباد کلام سنائے۔ آج بروز چہارشنبہ بعد نماز فجر درگاہ شریف فاتحہ خوانی اور محفل چشت منعقد تھی۔ اختتام پر مولانا سید عبدالباقی قادری نظامی قبلہ نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ شہر کے اربن ایم ایل اے کیمپ دفتر سے نندی پیٹ منڈل CH کنڈور دیہات میں واقع سری لکشمی نرسمہا سوامی مندر کی تقاریب کے اختتامی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے MLA بیگالا گنیش گپتا کی قیادت میں TRS قائدین و عوامی نمائندے ریالی کی شکل میں ہوئے روانہ۔ نندی پیٹ منڈل CH کنڈور دیہات میں گزشتہ 6 دنوں سے جاری لکشمی نرسمہا سوامی مندر کی تقاریب کے اختتامی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے شہر کے سبھاش نگر میں واقع MLA کیمپ دفتر سے اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کی قیادت میں TRS قائدین عوامی نمائندوں کی بھاری تعداد گاڑیوں کے ذریعے ریالی کی شکل میں روانہ ہوئے، جس میں دور دراز مقامات سے تعلق رکھنے والے قائدین عوامی نمائندوں کی بھاری تعداد ہونے کے باعث شہر میں کافی ہلچل دیکھی گئی۔ جمیعت علماء آرمور کی جانب سے محمد شاہد کو تہنیت۔ محمد شاہد کو ٹیلی کام ڈائریکٹ نامزد کیے جانے پر صدر جمیعت علماء آرمور حافظ محمد ابراہیم کی نگرانی میں محمد شاہد کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی، جس پر محمد شاہد نے جمیعت علماء آرمور یونٹ سے اظہار تشکر کیا اور ٹیلی کام نیٹ ورک کے جو بھی مسائل ہیں اسے حل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر صدر جمیعت علماء حافظ شیخ ابراہیم، نائب صدر مولانا اکرم الدین مفتاحی، معتمد حافظ مصباح، نائب معتمد حافظ اسحاق، شریک معتمد حافظ عبدالوحید، خازن محمد یوسف الدین اور دیگر ذمہ داران، حافظ کاشف، مولانا مقیم قاسمی، حافظ عمران، حافظ فاروق، مفتی عظیم الدین، حافظ حبیب، عبدالصمد اور دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے لیے عازمین حج کی 590 تک ویٹنگ لسٹ منظور، 85 اضافی نشستیں کل تک مکمل رقم ادا کرنے منتخب عازمین کو مہلت۔ حج 2022 کے لیے ملک کی 11 ریاستوں میں اضافی نشستوں کی منظوری دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے بمشمول 10 ریاستوں میں جملہ 1552 اضافی نشستیں الاٹ کی گئی، جن میں وزیر اعظم اور مرکزی وزارت اقلیتی امور کے خصوصی کوٹے کے تحت اعلیٰ ترتیب 75 اور 36 نشستیں شامل ہیں۔ مختلف ریاستوں میں سفر حج کی منسوخی سے مخلوع نشستوں کو 11 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ تلنگانہ کے لیے ویٹنگ لسٹ 590 تک منظور ہو چکی ہے، جس کے تحت 85 اضافی نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ دہلی، گجرات، ہریانہ، جموں کشمیر، کرناٹک، کیرلا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور اتراکھنڈ کے لیے ویٹنگ لسٹ کی منظوری دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا محمد یعقوب شیخ کے مطابق منتخب ویٹنگ لسٹ کے عازمین کو سفری اخراجات کی مکمل رقم 10 جون تک ادا کرنی ہوگی۔ انہیں ادائیگی سے متعلق پے سلپ اور دیگر ضروری دستاویزات متعلقہ حج کمیٹیوں میں جمع کرانا ہوگا۔ ریاستی حج کمیٹیاں عازمین کے پاسپورٹ، میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے علاوہ پے سلپ کی تفصیلات 10 جون تک حج کمیٹی آف انڈیا کو روانہ کرے۔ نندی پیٹ منڈل CH کنڈور دیہات میں MLC کے کویتا کے افراد خاندان کی جانب سے تعمیر کردہ لکشمی نرسمہا سوامی مندر کی تقاریب کا آج شاندار پیمانے پر اختتام عمل میں لایا گیا۔ نندی پیٹ منڈل CH کنڈور دیہات میں متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا و ان کے افراد خاندان کی جانب سے تعمیر کردہ لکشمی نرسمہا سوامی مندر میں گزشتہ 6 دنوں سے خوشگوار ماحول میں مذہبی رسومات انجام دی گئی، جس میں دور دراز مقامات سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کی بھاری تعداد نے شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجا پاٹ انجام دی۔ اس موقع پر دیگر عقیدت مندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا و ان کے افراد خاندان کی جانب سے تعمیر کی گئی لکشمی نرسمہا سوامی مندر میں گزشتہ 6 یوم سے جاری تقاریب میں مشہور معروف اشخاص کے علاوہ عوامی نمائندے، عہدیداران کے علاوہ عقیدت مندوں کی بھاری تعداد نے شرکت کرنے کے باعث مندر کے احاطے میں ہلچل نظر آئی۔ نظام ساگر منڈل کے تنکی پلی دیہات میں 5ویں مرحلے کے پلے پرگتی پروگرام کے تحت منعقدہ ترقیاتی کاموں کا ضلع کامریڈی جکل رکن اسمبلی ہنومان شنڈے نے جائزہ لیتے ہوئے مقامی عوام سے متعلق مسائل سے کی واقفیت۔ ضلع کامریڈی جکل رکن اسمبلی ہنومان شنڈے نے دیہی و شہری علاقوں میں موجودہ مسائل کی یکسوئی کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ 5ویں مرحلے کے پلے پرگتی پروگرام کے تحت نظام ساگر منڈل کے تنکی پلی دیہات میں روبے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی کاموں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے دیہی و شہری علاقوں کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے مقصد کے تحت
पहले प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शहर में रोज़मर्रा के कामों के बजाय इब्तदाई कामों की निशानदेही करने के अलावा इन कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करना है, जिससे लोगों की मुश्किलात में कमी वाक़ई होने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान, एमपीपी, एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। ఐదుగురు గాని అంతకంటే ఎక్కువ గాని ఉంటే 20 కిలోలు మాత్రమే ఇచ్చేది స్లాబ్. వైకుంఠ ధామం కావచ్చు, డంపింగ్ యార్డు, నాటిన మొక్కలు ఎండిపోకుండా చనిపోకుండా ఉండడం కోసం ప్రతి గ్రామంలో ట్రాక్టర్ పెట్టి, ట్రాక్టర్కు ట్యాంకర్లు పెట్టి ఎండిన చెత్తను, డ్రైన్ల నుంచి తీసినటువంటి ఎండిన చెత్తను డంపింగ్ యార్డ్లో వేయడానికి ఆ ట్రాక్టర్కు ట్రాలీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రతి గ్రామంలో, ఒక గ్రామంలో కాదు ఈ కార్యక్రమాలు, ప్రతి గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమాలు, వీటికి అదనంగా సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజ్లు దాదాపు 80% పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకో 20% మాత్రమే మిగిలినాయి. ఆ 20% కూడా రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంటామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत गांडलापेट देहात में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने का मुकामी सरपंच एम सौजन्या सुमन ने किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत गांडलापेट देहात कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने का मुकामी सरपंच बामड़ी सौजन्या सुमन व खुसूसी अहदेदार लिंगम ने इजहार करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब हमारे देहात में तेजी के साथ तरक्याती काम अंजाम देने के बाइस मौज़े में मुक़ीम अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इसी तरह दही व शहरी इलाकों को तरक्की दिलाने के लिए शुरू किए गए पहले प्रगति प्रोग्राम के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई जाएगी और इसके अलावा मौज़े में पहले प्रगति प्रोग्राम के जरिए मनसूबाबंदी के तहत तरक्याती कामों को जारी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान, एमपीटीसी, एमपीपी व दीगर ने शिरकत की। पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत मोरतार देहात में मुक़ीम अवाम को खुश्क तर कचरे के ताल्लुक से शौर बेदारी इजलास अमल में लाने का आंगनबाड़ी टीचर्स ने किया इजहार। मोरतार मंडल के मुकाम पर पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत आंगनबाड़ी टीचर्स ने देहात में मुकीम अवाम को खुश्क तर कचरे के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि घरों में निकलने वाले कचरे को म्यूनसिपल वैन के हवाले करते हुए ट्रैफिक नाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की बात बताते हुए अम्मा बड़ी प्रोग्राम के तहत तमाम हामिला खवातीन हॉस्पिटल में कई तरह के टेस्ट करने का इजहार करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों को रोज़ाना रवाना करने पर इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी और इसी तरह से 3 साल मासूम बच्चों के सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में आंगनबाड़ी टीचर्स, मौजूद मुक़ीम अव्वाम व दीगर ने शिरकत की। అంగన్వాడీ టీచర్కి ఇస్తా ఈరోజు పల్లె ప్రగతి బాటలో ముందుగా ప్రతి ఇల్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి తడి చెత్త, పొడి చెత్త గురించి వేరువేరుగా मोरतार मंडल की प्राइमरी स्कूल की जानिब से बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का हेडमास्टर सागर ने किया इजहार। मोरतार मंडल के प्राइमरी स्कूल की जानिब से बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का हेडमास्टर सागर ने इजहार करते हुए बताया कि हर रोज़ बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत 5 साल मुकम्मल करने वाले तलबा को स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है और स्कूल की कुशादगी अमल में लाने तक बड़ी बाटा प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए स्कूल में दाखिला लेने वाले तलबा को यूनिफॉर्म व किताबों की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी और इसके अलावा इस साल सरकारी स्कूलों में जारिया तालीमी साल से अंग्रेज़ी मीडियम शुरू करते हुए गरीब बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में मियारी तालीम हासिल करने का मौका फ़राहम करेंगे और इसी तरह से तमाम सरकारी स्कूलों में साफ़ पीने का पानी व कुशादा कमरे जमात के अलावा खेल के मैदान के साथ साथ मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। నా పేరు బి సాగర్, ఎంపీపీఎస్ ఎస్సీ కాలనీ మోర్తాడ్ ప్రైమరీ స్కూల్ హెచ్ఎం. మేము బడిబాట కార్యక్రమం జరిగింది. ఈరోజు రెండవ తరగతిలో రమాబాయి అనే పాపని జాయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది. निज़ामाबाद में IT हब के क़याम के लिए इक़दामात, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की टास्क की टीम के साथ मुलाकात और तफसीली बातचीत।
रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज डिपार्टमेंट IT एंड ई गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की टीम के साथ आज कैंप ऑफिस में तफसीली तौर पर मुलाकात की। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद में IT हब का क़याम अमल में लाया जा रहा है। शहर के बाद दूसरा बड़े शहर की तरह निज़ामाबाद में भी IT हब का क़याम अमल में लाते हुए बेरोज़गार नौजवानों को दही सतह पर मुलाजिमतें फ़राहम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस पर गणेश गुप्ता ने कहा कि IT हब में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को लाने के लिए इक़दाम करें ताकि नौजवानों को मुलाजिमतों का मौका फ़राहम हो सके। निज़ामाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से IT हब के क़याम के लिए तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। IT हब की इमारत की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए इसके इफ्तिताह के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसका संग बुनियाद वज़ीर बल्दी नज़्म व IT मिनिस्टर KT रामाराव ने रखा था और इनकी क़यादत में ही तेलंगाना एकेडमी पर स्किल एंड नॉलेज इदारे की जानिब से कैंपस इंटरव्यूज़ अमल में लाए जा रहे हैं। 4 कंपनियां इंटरव्यूज़ मुनक़्क़िद करने के लिए इक़दाम करें। आने वाले दिनों में मज़ीद 15 कंपनियां आने के इम्कान थे और इसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों होने का इम्कान है। निज़ामाबाद में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का जायजा, महकमे तालीमात सेक्रेटरी करुणा का दौरा, ओहदेदारों और तुलबा कमेटियों के साथ इजलास। जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जिले में अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्राम का महकमे तालीमात के सेक्रेटरी करुणा के हमरा सिद्दापल्ली प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए जायजा लिया। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद जिले में स्कीम की अमलावरी में एक मिसाल कायम हुई और सिद्दापल्ली प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर कामों को अंजाम दिया गया, जिसकी बिना पर रियासती तालीमात के सेक्रेटरी करुणा ने निज़ामाबाद जिले डिचपल्ली मंडल के सिद्दापल्ली के प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। स्कूल में अंजाम दिए जाने वाले कामों का मुआयना करते हुए ओहदेदारों ने तफसीलात हासिल की। बातज़ा न्यू अम्बेडकर भवन में ओहदेदार और औलिया तुलबा की कमेटियों के चेयरमैन के जरिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए करुणा ने कहा कि ज़िले में मनसूबा बंद तरीके से हमारा गाँव हमारे स्कूल के प्रोग्रामों को अंजाम देने की वजह से रियासत गिर सतह पर ज़िले एक मिसाली करार दिया गया है और हर स्कूल में आबी सहूलतों की फराहमी के लिए मिशन भगीरथा के पाइपलाइन के जरिए कनेक्शन फराहम किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने पर ज़िले कलेक्टर को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत सरकारी मदारिस में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम करें और इंजीनियरिंग तालीमात के ओहदेदार और कमेटियों के इश्तराक से काम करने की सूरत में बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। ज़िले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने सीनियर IAS ऑफिसर करुणा को वाकिफ करवाते हुए बताया कि 407 मदारिस को पहले मरहले में मुंतखब किया गया और इनमें से 367 मदारिस के कामों को मंजूर किया गया और 132 मदारिस के काम के लिए फंड्स भी मंजूर किए गए और अब तक चंद मदारिस में 70% कामों को अंजाम दिया गया। बाउंड्री वॉल्स, किचन शेड्स, बैतुल खला की तामीर, तमानियत रोज़गार स्कीम के तहत अंजाम दी जा रही मदारिस के लिए मंजूर किए जाने वाले फंड्स का इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा हासिल किया जा रहा है और मेयारी काम अंजाम दिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इंग्लिश में तदरीस के अमल को भी अंजाम दिया जा रहा है। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DEO दुर्गा प्रसाद, इंजीनियरिंग के ओहदेदार भी मौजूद थे। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर KCR व इनके शरीक हयात शोभा के अलावा राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। नंदीपेट मंडल CH कोंडू देहात में मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता DR अनिल व इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से तामीर किए गए राज्य लक्ष्मी स्मिता लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तक़रीब के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव व इनके शरीक हयात शोभा, राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष राव, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत करने के बायस मंदिर के हाथ में काफ़ी हलचल देखी गई।
महकमे पुलिस की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत रैली का एहतमाम। एसआई मोहम्मद गौस ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। भैंसा पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से रैली की शक्ल में एक मुहिम चलाई गई। ये रैली ज़ेर निगरानी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस मक्का मस्जिद से आगाज़ करते हुए निर्मल रोड खड्डा होटल पर इख्तिताम को पहुँची, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मजलिसी काउंसलर सैयद इरफान और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस ने कम उम्र बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की वालिदैन से पुरज़ोर अपील की। इस मौके पर एम ए जमील, शेख साजिद, सैयद अजीम के अलावा दीगर मौजूद थे। ASTU एंटी वुमन ट्रैफिकिंग यूनिट के बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम के वास्ते ये रैली निकली। ये रैली में क्या है बोल तो छोटे बच्चों को कामों पे नहीं लगाना और छोटे बच्चे जो औरत बच्चियाँ हैं नाबालिग है वो बच्चों को शादियाँ नहीं करना और क्या है बोल तो और छोटे बच्चों को भी ड्राइविंग गाड़ियाँ नहीं देना। अगर गाड़ियाँ दिए तो जो गाड़ी जिसके नाम पे है वो भी मुलजिम उसमें कहा जाता है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अवैसी नगर अवैसी मस्जिद के पास से खड्डा होटल होते आए। हमारा मकसद ये बच्चों को तालीम दो, छोटे बच्चों को और बच्चों को इस तरीका पे मत भिजाओ, बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो। हमारा मकसद ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पटना प्रगति प्रोग्राम का अहम तरीन मकसद दही व शहरी इलाकों को तरक्की की जानिब गामजन करने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा शहर में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 2 बीडी वर्कर्स कॉलोनी में मुनक्किदा शहरी तरक्की प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से शुरू किए गए दही व शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत मौज़ में मौजूद बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी करते हुए मौज़ में मुक़ीम अवाम को इनके अपने घरों के अलावा माहौल को साफ सुथरा रखने की ताकीद की और माहौल को सरसब्ज़ और शादाब रखने के लिए हर एक फ़र्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर और खाली मकामात पर पौधे लगाने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि बांसवाड़ा शहर में बुनियादी सहूलियात जैसे रोड, पीने का पानी, ड्रेनेज व दीगर सहूलियात की फ़राहमी के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत हर मोहल्ले में सीसी रोड व ड्रेनेज व दीगर तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है। रोड कोसम పోతాను ముందుకు వచ్చినటువంటి మా ఆడబిడ్డలకు ఎవరికి కాదనకుండా దాదాపు 300 ఇళ్ళు కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. కట్టిన ఇళ్ళు 42, ఇంకా 580 ప్లాట్కి ఖాళీ ఉన్నాయి. ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లాట్లలో కూడా ఇప్పుడు మనం కట్టుకున్నటువంటి స్కీము 2 బాత్రూమ్లు, ఒక చుట్టాలతో కూర్చోవడానికి హాలు, ఇది 5,04,000. మున్సిపాలిటీ అయితే మనకు 5,30,000. కొంతమంది అమ్ముకుంటున్నారని కొంటున్నారని, నేను అమ్మే వాళ్ళ కోసం ఇయ్యలే ఇల్లు. ఇది జాగా చట్ట ప్రకారం ఆడియో గారు ఉన్నారు, చట్ట ప్రకారం 2 గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు, ఇల్లుతో సహా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ చేతి పని మీద బతికేటువంటి పేదవారికి కులం లేదు, మతం లేదు, పార్టీ లేదు, అటువంటి వ్యక్తులకు ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో ఈ 3 కాలనీ తయారు చేశారు. रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के क़याम अमल में लाए हुए 70 साल की तकमील के मौके पर डिशपल्ली के मानवता सदन में तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। डिशपल्ली मानवता सदन में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद का क़याम अमल में लाते हुए 70 साल की तकमील के मौके पर रोटरी क्लब सदर जी प्रकाश के ज़ेर निगरानी में क्लब की जानिब से तलबा को तकरीबन 1,50,000 रुपये माली रकम पर मबनी बच्चों को खेलने की चीज़ों के अलावा LED प्रोजेक्टर के साथ साथ पकवान रूम में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर व AC की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब निजामाबाद सेक्रेटरी श्रीकांत जौहर, खजांची सुधीर गुप्ता, मेम्बरान नरसिम्हा रेड्डी, कमल, हेज भूमनी, दर्शन सिंह व दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు ఇంకో చాలా మంచి రోజు, అది మన రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్, మా రోటరీ ఈ రోజు 70th బర్త్డే మేమందరము మీతోటి సెలబ్రేట్ చేసుకుందామనే ఆశతో వచ్చాము. మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత మనం కేక్ కూడా కట్ చేస్తాము, మనందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము. ఓకే, इन्नारा पिल्ललो। नवीपेट टाउन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नई कमेटी तश्कील। अब्दुल हक नज़ीर सदर, ज़िले मजलिस M.A. फ़हीम, मुशीर बाबा की तमाम नामज़द ओहदों पर फायज होने वाले सदर व अराकीन को मुबारकबाद।
कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हैदराबाद के सीनियर कायद अब्दुल हक नज़ीर नवी पेट का दौरा किया और मजलिसी कायदीन ने इनका शानदार खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में जिले सदर एम.ए. फ़हीम, टाउन सदर बोधन मुशीर बाबा ने भी शिरकत की और एक प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ जहाँ पर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कायदीन के साथ मुशावरत की गई और नवी पेट टाउन के हालात से वाकिफियत हासिल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नवी पेट टाउन के सदर की हैसियत से अरशद कुरैशी, सेक्रेटरी अब्दुल रहीम, जॉइंट सेक्रेटरी शेख फिद, शेख आमिर, शेख ख्वाजा कैसर, मेंबर की हैसियत से मोहम्मद सलीम कुरैशी, इरफान कुरैशी, सैयद सोहेल, शेख रिजवान, शेख अफसर को नामजद किया गया। नौ तश्कील शुदा कमेटी के अरकान ने अब्दुल हक नज़ीर और पार्टी सदर जिले एम.ए. फ़हीम और बोधन टाउन मुशीर बाबा के अलावा बिलखुसूस सदर कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और तमाम आला काम से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में अरशद कुरैशी ने कहा कि नवी पेट मंडल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर तमाम नौमुंतखबा अरकान की गोलपोशी की गई और मुबारकबाद पेश की गई। नवी पेट कंधा कुर्ती चौरास्ते क्रॉसिंग के पास लॉरी की कार से टक्कर, कार में मौजूद सेफ बैलून ओपन होने के बायस मुसाफिरीन को मामूली चोटें आई। नवी पेट मंडल के मुकाम पर वाक़ भारत पेट्रोल के पास लॉरी व कार का तसादम होने के बायस दीगर अफराद जख्मी हो गए। लॉरी के कलवट से टकराने पर उलट गई। रेंजल मंडल कलियापुर देहात से निजामाबाद की जानिब वाली कार को आसिफाबाद से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली लॉरी टकराने से कलियापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला लावण्या नामी लड़की को मामूली जख्मी होने वाली लड़की की इस माह की 25 तारीख को शादी होने की बिना पर इनके अफराद खानदान शादी के कपड़े खरीदने के लिए जाने के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें लावण्या व लॉरी ड्राइवर मामूली जख्म आने पर इनके अरकान खानदान ने राहत की सांस ली। इस कार में मौजूद एयर बैलून ओपन होने के बाद कार में मौजूद 5 अफराद को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के मुतालिक इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन हादसे मुकाम पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करके केस दर्ज करने का और तहकीकात करने का इजहार किया। మరి ఇటు కళ్ళపురం పోతాడేమో అని మా పిల్లగాడు ఏం చేసిండు, ఇట్లా ఇట్లా పోయిండు, ఆయన మీద సట్టని మర్చిపోయిండు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दाखिलों का आगाज, फख्र निजामाबाद आलमी शोहरत याफ्ता गोल्डन गर्ल बॉक्सर निखत जरीन की हिंदुस्तान की जानिब से नुमाइंदगी का इम्कान। नंदीपेट मंडल सीएच कोंडूर देहात में गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तकारीब के इख्तितामी प्रोग्राम में मशहूर मारूफ शख्सियात के अलावा रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, सीएम केसीआर में उनके शरीक हयात एमएलए जीवन रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता वो दीगर ने की शिरकत। पटना प्रगति प्रोग्राम का अहम तरीन मकसद दही व शहरी इलाकों को तरक्की की जानिब गामजन करना, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। नवी पेट कंधा कुर्ती चौरास्ता क्रॉसिंग के पास लॉरी की कार से टक्कर, कार में मौजूद सेल्फ बैलून ओपन होने के बाद मुसाफिरीन को मामूली चोटें आई। इस्लामिक समर कैंप गौतम नगर का हुआ इख्तिताम, तुलबा के बेहतरीन मुजाहरे पर जिम्मेदारान की जानिब से इनामात की तक़सीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।